ತೇಜಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗ್ಗಾ ಎಂದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಹೌದು, ಇಂತಹ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಯುವಕನ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಒಂದು ನೋಟ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹೆಸರು ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗ್ಗಾ, ನಿಕ್ ನೇಮ್ ತೇಜೇಂದರ್, ವೃತ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು, ಜನನ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 1975, ವಯಸ್ಸು 31 ವರ್ಷ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗ್ಗಾ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ತೇಜಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗ್ಗಾ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನಾ ಗುಂಪಿನ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ್ರೋಹ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 1, 2015 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಪರ್ 150 ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದೇ ತೇಜಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗ್ಗಾರವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ದೆಹಲಿ ಘಟಕದ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಯುಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಲ್ ಚಿಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತೇಜಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗ್ಗಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 155ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತೇಜಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗ್ಗಾ, ಉಡುಪಿಯು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮೋದಿ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಮೋಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋದಿಯ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರು ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಗ್ರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಗ್ಗಾರವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿ ರಿಸೀವ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗ್ಗಾರವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ತೇಜಿಂದರ್ ಭಗ್ಗಾ ಅಂತ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. तೇಜಿಂದರ್ सिंह भग्गा जी, कल आपने एक ट्वीट किया था, योगी आदित्यनाथ जी का एक मजाक उड़ाया था और ट्विटर में एक फ़ोटो भी डाला था. से इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर चुका है और कांग्रेस की सोच क्या है, मानसिकता क्या है, ये ट्वीट वो बताता है. हो सकता है हमारे राजनीतिक विद्वेष हो, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर राजनीतिक जो विचारधारा के उनके लोग नहीं थे, जिस तरीके से ऐसे सैकड़ों लोगों की पिछले 5 साल में हत्याएं हुई, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर दिखाई गई, क्या इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को कांग्रेस मारना चाहती है? एक आग खोलती हुई आग के ऊपर एक पतीला रख के उसमें योगी आदित्यनाथ जी को बिठाया गया. मुझे वो तस्वीर देख के वो काल, मुगल काल याद आ गया, जब भाई दयाला जी, एक व्यक्ति, एक शहीद, जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो मुगलों ने इसी तरीके से आग के ऊपर पतीले में उनको उबाल के शहीद कर दिया. ठीक उसी तरीके से आग के ऊपर पतीला रख के योगी आदित्यनाथ जी को कल इस तस्वीर में दिखाया गया. क्या कांग्रेस उसी मुगल मानसिकता के साथ चल रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं. क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरीके से आग के पतीले पे ऐसे जलता हुआ दिखाया जाना,
क्या ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है? क्या कांग्रेस योगी आदित्यनाथ जी से इतना डर चुकी है कि वो 2 बारी अगर कर्नाटक आते हैं तो उसके बाद उनको इस तरीके की राजनीति करनी पड़ जाएगी? तो ये कांग्रेस की राजनीति, उनकी मानसिकता, उनकी किस सोच है राजनीति की, ये बताता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को इस पर सफाई देनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए देश से, किस तरीके से उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ जी का अपमान किया है और जो कांग्रेस की मानसिकता दिखाई है। सारे देश में बहुत से लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी की जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है उससे थोड़ा जलन हो रही है उनको। सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में सभी ऐसा अफवाहें फैला जा रही है कि मोदी जी का नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं। आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है जो प्रोपेगेंडा है ये विपक्ष द्वारा चलाया जा रहा है, ये उन्हीं लोगों द्वारा चलाया जा रहा है और एक सोची समझी साजिश के तहत भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, जाति के नाम पे लड़वाया जा रहा है, क्षेत्र के नाम पे लड़वाया जा रहा है, भाषा के नाम पे लड़वाया जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी प्रयास कर ले, आप देश को तोड़ नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर जो हालात हुए, जिस तरीके से भाई को लड़वाया गया, देश जानता है उसके पीछे कौन था। ये वही मॉडल था जो इन लोगों ने गुजरात के अंदर अपनाया, भाई को भाई से लड़वाया, जाति के नाम पे लड़वाया। यही वही मॉडल था जो गुजरात में से पहले हरियाणा में इन लोगों के द्वारा अपनाया गया। लेकिन इससे देश टूटने वाला नहीं है। ये पहली बार नहीं है जो इन लोगों द्वारा सत्ता की भूख के कारण, इनकी राहुल गांधी जी की दादी जी ने कभी किस समय पंजाब में भिंडरावाले को पैदा किया, तो ये वही सत्ता की भूख है जो आज ये करवा रही है। कभी राजीव गांधी ने प्रभाकरण को पैदा किया। तो ये जो सोच है ये कांग्रेस की डीएनए में है, ये कांग्रेस के मानसिकता में है, डिवाइड एंड रूल जो उन्हें अंग्रेजों से मिली है। तो उसी के ऊपर कभी ये भिंडरावाले को पैदा करते हैं। लेकिन आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके भिंडरावाले और प्रभाकरण जब इस देश को तोड़ नहीं पाए, तो ये जो 4 बच्चे हैं ये इस देश को नहीं तोड़ पाएंगे। जिस तरीके से ये क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे आज कर्नाटक के अंदर की जो हिंदी कन्नड़ा के नाम पे लड़वाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बॉर्डर के ऊपर जो खून गिरता है, जहां कैप्टन विक्रम बत्रा का खून गिरता है, उसी धरती पे हनुमन थप्पा का खून गिरता है, कर्नाटक के बेटे हनुमन थप्पा का। क्या उस धरती से आप हनुमन थप्पा का खून और कैप्टन विक्रम बत्रा का खून अलग कर सकते हो? इसी मिट्टी के खातिर दोनों शहीद होते हैं। तो ये जो मानसिकता है कि हम हिंदी के नाम पे, कन्नड़ा के नाम पे, जाति के नाम पे देश को बंटवा देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। और जो लोग देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये देश उनको जवाब देगा। बग्गा जी, अभी आपने कहा था कि पंजाब के बारे में कहा था, हालांकि अभी का चुनाव हो गया, उसमें भाजपा हार गई, भाजपा के मित्र पक्ष हार गए और कांग्रेस जीत गई। रीज़न क्या है? मतलब क्यों भाजपा हार गई और कांग्रेस जो भी मॉडिफाइंग इंडिया है और मोदी जी का इतना प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, इसके बावजूद पंजाब में कांग्रेस सरकार आ गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मुश्किल से वह 20% सीटों पर भी लड़ती नहीं है कभी। तो वह अकाली दल चुनाव लड़ता था और पिछले 10 साल से वो सत्ता में था। तो कुछ लोगों की नाराजगी थी जिसके कारण वहाँ कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन उसको भी हम कांग्रेस की जीत नहीं कहेंगे, क्योंकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर आप उस कैंपेन को देखेंगे, उन्होंने राहुल गांधी जी को घुसने नहीं दिया पंजाब में पूरी कैंपेन में। तो वहाँ जो हमारे अलायंस है उससे उनकी नाराजगी थी, उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे मुश्किल से 20 सीटों पे लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई ऐसी लोगों की नाराजगी नहीं थी, क्योंकि हम वहाँ बड़े ही छोटे अलायंस है और बहुत ही कम सीटों के ऊपर लड़ते हैं। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಗ್ಗಾಜಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು VIP ಲಾಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಆದಂತಹ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
बग्गा जी, हालांकि अभी तो चुनाव हो गया गुजरात का, इसमें करीब भाजपा को 15 से 16 सीट तक का नुकसान हो गया, और नोटा का भी एक बहुत बड़ा इसमें मतलब बहुत से लोगों ने नोटा में भी वोट डाल दिया। इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कर्नाटका में, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर भारत के वोटर्स तो यूथ है। एक समीक्षा, ये एक सर्वे बताता है कि majority of the voters in India are the youth in between the age group 18 to 45, around about 55 to 60% of the voters. So will there be any impact in Karnataka because of the results of the Gujarat elections, or will there be any impact in Karnataka because of the nearby states elections? So how do you predict, or what is the impact of the elections in Karnataka, or what will be the impact? देखिए, गुजरात के अंदर जो इलेक्शन हुआ, 22 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता के अंदर थी, और आगे जितने भी चुनाव हुए पिछले 3 बार 4 बार के, वो नरेंद्र मोदी जी खुद मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं थे, थोड़ा उसका फर्क पड़ा, क्योंकि जब पहले लोग वोट देते थे, आज देश में भी जो युवा है, एक मोदी जी के प्रति एक अलग समर्थन है, तो वो वोट एक मोदी जी के लिए जाता था, तो मोदी जी इस बार चेहरा नहीं थे। दूसरा, जिस तरीके से गुजरात के अंदर जातिगत राजनीति की गई, उसका थोड़ा इम्पैक्ट हमें झेलना पड़ा। लेकिन ये कहना कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी या इस चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो बिजनेस हमारी जो कम्युनिटी थी वहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा या तो सूरत में थी या अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद में हम 18 में से 14 सीटें जीत के आए, और सूरत जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स है, क्योंकि गुजरात का जो सबसे बड़ा ट्रेडर वो है, वो सूरत के अंदर है, जहाँ डायमंड के जो व्यापारी भी हैं, और जो कपड़े के भी सबसे बड़ी देश में एक मंडी है, तो उस सूरत के अंदर हम 16 में से 15 सीटें जीत के आए। तो ये मुझे लगता है, जो लोग डिमोनेटाइजेशन को, नोटबंदी को प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उन लोगों को ये जवाब मिल गया है कि हमारी सरकार की आर्थिक नीतियाँ, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी जगत है, वो इसके साथ है। हमें जो नुकसान हुआ मध्य गुजरात में, जहाँ सबसे ज़्यादा जातिगत के कारण वो राज्य, वो क्षेत्र जला, तो मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों ने उन लोगों को भी देखा कि कौन उनके पीछे थे। चुनाव के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोगों को अब लाके, या दिल्ली में अभी 4 दिन पहले इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब लोग जान चुके हैं कि कौन उनके पीछे थे, और जो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ा, मुझे नहीं लगता कि कर्नाटका के अंदर पड़ेगा, और कर्नाटका में हम 2/3 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। ओके, जो येडियुरप्पा जी का मिशन है, मिशन 150, और अमित शाह जी भी अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में आ रहे हैं, और बहुत से राजकीय नेता भाजपा के वो कर्नाटका में आए हैं, पार्टी का कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि 224 सीटों में कितना सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से 5 साल का कुशासन रहा है, जिस तरीके से 5 साल में भ्रष्टाचार रहा है, जिस तरीके से 5 साल में जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, एकदम लचर हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की हत्याएं की गई है, लोग अब इस व्यवस्था से उब चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर आज जो विकास की प्यार बही है, देश मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि 2/3 सीट जो बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आएगी, और 150 का जो आंकड़ा है जो येदियुरप्पा जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको पार करके आगे बढ़ेगी। हाल ही की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बताया कि मोदी जी के आने के बाद ये 3 साल में, 3.5 साल में करीब 7 करोड़ जॉब्स उन्होंने क्रिएट कर दिया है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, and that credit also goes to the Make in India, whatever you have said in the beginning, and also the Skill India, which Anant Kumar Hegde ji is leading now. नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। जरूर। कि जो 7 करोड़ का डेटा है, 8 करोड़ का है, वो एक्चुअली अब 8 करोड़ का हो चुका है, और वो 8 करोड़ का डेटा सिर्फ मुद्रा योजना का है। उसके अलावा जो मेक इन इंडिया के द्वारा जॉब आई, या स्टार्टअप के द्वारा जो लोगों को एक मौका दिया गया, वो अलग है। जैसे मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं एक टैक्सी के अंदर आ रहा था, ओला कैब का ड्राइवर था, तो मैंने उससे पूछा कि भैया आप क्या कमा लेते हैं, तो उसने बोला पहले मैं 10,000 रुपये की ड्राइवर की नौकरी करता था, अब मैंने मुद्रा योजना के जरिए 1 लाख रुपए का लोन लिया,
और मैंने ये गाड़ी डाल ली, आज मैं खुद 50-60 हज़ार रुपये महीने का अपनी ओला कैब चला के कमाता हूँ। तो जो व्यक्ति 10,000 रुपये की नौकरी कमाता था, उसके सपने में भी नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई गारंटी के लिए नहीं था, उसका घर अपना नहीं था। 10,000 की नौकरी वाला सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी 50,000, 60,000, 70,000 रुपये महीने का कमा पाएगा। लेकिन मुद्रा योजना के जरिए ऐसे 8 करोड़ लोगों को लोन दिए गए। कोई बहन है जो 5,000, 7,000 रुपये ब्यूटी पार्लर की दुकान पे नौकरी करती थी, वो कैसे सोच सकती थी कि अपना ब्यूटी पार्लर खोलेगी। ऐसे लोगों को छोटे छोटे रोजगार खोलने के मौके दिए गए। 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन दिए गए। और जहाँ पे उनको अपना बताना होता है सिर्फ ये जाके कि वो क्या उस पैसे से करेंगे। तो एक अच्छा मौका दिया गया और ऐसे 8 करोड़ लोगों ने वो लोन लिए और अपना व्यापार शुरू किया। तो ये सिर्फ नौकरियां नहीं दी। आप ये बताइए, अगर उस बहन ने अगर ब्यूटी पार्लर खोला तो कम से कम 2 स्टाफ उस ब्यूटी पार्लर में रखे होंगे। 16 करोड़ हो तो गया। 8 करोड़ लोगों ने जो वो किया, मुद्रा योजना के जरिए अपने व्यापार शुरू किया। मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी अपने बिजनेस में रखा हो तो कम से कम 16 करोड़ लोगों को ये अपना व्यापार या नौकरी मिली। उसके अलावा जो मेक इन इंडिया के जरिए जैसे आईफोन आ जा रही है या मोबाइल कंपनियां हैं, उनको जो आज अगर आप देखेंगे 70% जो कंपनियां हैं उस पर आप मेक इन इंडिया लिखा होता है। तो उन्होंने चाइना से बंद करके यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चालू किया। तो निश्चित रूप से जब वो यहाँ पे बनाएंगे तो उनकी फैक्ट्री में जो जॉब है वो भारत को मिलेगी, जो चाइना में कल तक जाती थी या जहाँ पे भी वो कंट्री की कंपनी थी वहां जाती थी। तो ये डेटा जो है ये 20 करोड़ से कम ऊपर है। So this is nothing but modifying India. Yes, this is a modification और this is a मतलब ऐसा है कि ये थॉट है कि ऐसा नहीं है पहला पैसा नहीं था, लेकिन वो पहले पैसा कहाँ चला जाता था, वो 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो जाता था, वो 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो जाता था, वो कभी कॉमनवेल्थ के नाम पे घोटाला हो जाता था। वही पैसा है जो देश के पास पहले था। कोई मोदी जी या भाजपा अपनी जेब से नहीं लगा रहे, ये देश का ही पैसा है जो देश के काम मोदी जी लगा रहे। So you want to say that the modifying India is nothing but the equation is nothing but corruption free India and the progressive development of India. That is what the Modi ji is trying since the last 3.5 years. बिल्कुल। Okay, fine. हाल में आपका अल्पेश और जिग्नेश के बारे में जब भी उनके मीडिया में आता है तो आपके बारे में भी न्यूज़ आता था। सो अल्पेश ने और जिग्नेश ने थोड़ा टिप्पणी दे दी मोदी जी के ऊपर और आपने भी थोड़ा टिप्पणी दे दी ऊपर, और ममता बनर्जी ने करीब 3 महीने पहले आपका अरेस्ट भी करवा दिया। सो हालांकि सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका था बहुत बड़ा न्यूज़ पे आ गया था। सो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ममता जी ने उस समय दुर्गा पूजा के ऊपर बैन लगाया और हमारा कहना यह था कि बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर या देश के अंदर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। बंगाल में बहुत ज़्यादा माँ दुर्गा को माना जाता है और 10 दिन तक वह पूजा चलती है। दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक दिन आ गए तो उन्होंने कहा कि मुहर्रम के कार्यक्रम अच्छे से हो सके और कोई सांप्रदायिकता ना फैले, इसलिए दुर्गा पूजा के एक दिन पूजा को बंद कर दिया जाए। और ये पिछले साल भी उन्होंने किया था और कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप दुर्गा पूजा के लिए मुहर्रम के कार्यक्रम को बंद करने का सोच भी सकती हैं। उन्होंने पूछा क्या किसी दिन 26 जनवरी को अगर रामनवमी आ जाए या कोई हिंदू त्यौहार आ जाए तो क्या आप 26 जनवरी के जो कार्यक्रम है उसको रोक देंगी या रामनवमी को रोक देंगी। तो इस तरीके के जो सांप्रदायिकता की राजनीति सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए वो उन्होंने की और कोर्ट ने उस पर खुद रोक लगा दी। हमारा कहना यह था कि अब हम नहीं कह रहे कि मुहर्रम के कार्यक्रम पे रोक लगाई, ये सरकार का काम है कानून व्यवस्था बना के रखना। मुस्लिम भी इस देश के नागरिक है, वो भी त्यौहार मनाए और हिंदू भी है वो भी मनाए, लेकिन आप एक धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए दूसरे धर्म की पूजा को रोक दें, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी समाज के अंदर इसको स्वीकार किया जाएगा। इसलिए हम उसके विरोध में कि भैया अगर आप उसको बैन लगाओगे तो हम निश्चित रूप से पूजा करेंगे। अगर आप अपनी सरकार के दम पे, अगर आप अपने सरकारी डंडे के दम पे अगर आप कोशिश करोगे कि आप हिंदुओं को कुचल दोगे तो ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। दिल्ली में 70 सीट में भाजपा को सिर्फ 4 सीटें मिली, 66 आपको मिला, आम आदमी पार्टी को। उसके पहले तो कांग्रेस था। मोदी जी के सरकार आने के बाद भी दिल्ली में भाजपा हार गई, इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक नई पार्टी आई और उस नई पार्टी ने आके बड़े बड़े वायदे किए, वायदे
कि हम फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे और फ्री वाईफाई कर देंगे, पूरी दिल्ली वाईफाई हो जाएगी, 15 लाख कैमरे लगेंगे। तो इस तरीके से बड़े बड़े हवाई जहाज जैसे बड़े बड़े वो दिए गए। लेकिन जब आज 3 साल उस सरकार को हो गए, लोगों ने देखा 15 लाख में से एक भी कैमरा नहीं लगा, वाईफाई जो फ्री वाईफाई की बात हो रही थी एक भी हॉटस्पॉट नहीं लगा। हालांकि जो महिला सुरक्षा के लिए कहा जा रहा था कि कमांडोस लगाए जाएंगे, एक भी बस में कमांडोस नहीं लगाए गए। 500 स्कूलों की बात हुई थी, एक भी नया स्कूल बनना चालू नहीं हुआ। 20 नए कॉलेज की बात हुई थी, एक भी नया कॉलेज बनना नहीं चालू हुआ। तो एक उन्होंने इस तरह के सब जवाब दिखा दिए कि लोगों को लगा कि शायद ये हो सकता है, और कहीं ना कहीं लोग उस झांसे में आ गए। लेकिन आज जब 3 साल हुए, लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने वायदे किए थे, इतने झूठे वायदे थे, वो नहीं पूरे हो सके। तो आज वो लोग एक्सपोज हो गए। जिन लोगों ने पानी को फ्री करने का वायदा किया था, आज फिर वो पानी के बाद दिल्ली में तो थोड़ा 1 हफ्ते पहले दाम बढ़ा दिए गए। बिजली के दाम आज 4 दिन पहले बढ़ा दिए गए। तो वो एक झूठ बोल के आप एक बार आ सकते हो, लेकिन बार बार उस पर नहीं आ सकते। वो लोगों के सामने आज एक्सपोज हो चुके हैं। जो केजरीवाल कहते थे कि वो जनता दरबार में जाके हर फैसला करेंगे, आज उनकी ताकत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है जनता के बीच जा सके, इसलिए उन्होंने वो जनता दरबार भी बंद करा दिए। हालांकि मैं दिल्ली गया था पिछले महीने, तभी मेरे को कुछ वाईफाई नहीं मिला हॉटस्पॉट। सो इसीलिए आपने बताया कि भरोसा का हवाई जहाज आ रहा है, लेकिन कोई अभी तक कामयाब नहीं हो गया। इज इट पॉसिबल दैट द बीजेपी विल गेन पावर इन द कमिंग असेंबली इलेक्शन इन दिल्ली? इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज, और व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू गेट बैक टू बीजेपी इन दिल्ली? नहीं, डेफिनेटली अभी तो उसमें खैर चुनाव में समय है, लेकिन आज अगर आप दिल्ली के किसी भी व्यक्ति से जाके पूछेंगे तो वो लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठा आदमी है। अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे उसमें एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और जिस समय दिल्ली के अंदर डेंगू के अंदर लोग मर रहे थे, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस समय बाहर विदेश में जाके घूम रहे थे। जब 4 दिन पहले दिल्ली में इस बार सर्दियों में 250 लोगों की मौत हो गई, तो ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अंडमान में जाके छुट्टियां मना रहे थे। तो किस तरीके की ये संवेदनहीन सरकार है, और किस तरीके से विकास के नाम पे किस तरीके से बड़े बड़े वायदे करके जो ये लेके आए और उसमें एक भी वायदा पूरा नहीं कर सके, तो लोगों के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। अभी जो 6 महीने पहले निगम के इलेक्शन हुए, उस निगम के इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो 2/3 बहुमत दिया, तो आज लोग भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करते हैं, और इसी कारण से हम 2/3 बहुमत से निगम में जीत के आए। हालांकि दिल्ली का जो यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हो गया, उसमें एबीवीपी थोड़ा जगह पे हार गई पिछले 2017 में, और जो भी उनका प्रेडिक्शन था कि इतना सीट जीतना चाहता है, वो इतना जीत नहीं पाए। सो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, हर कॉलेज के अलग मुद्दे होते हैं, और जो कॉलेज का चुनाव है वो कॉलेज के मुद्दों के दम पे लड़ा जाता है। और 4 में से वैसे भी उसमें 3 सीटें हम जीत के आए। अध्यक्ष का पद ठीक है हम हार गए, लेकिन 4 में से 3 हम जीत के आए उसमें। और उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उसके अलावा जितने भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं छात्र वाले, आप देखो तो ज़्यादातर राज्यों में हमने जीत हासिल की, 70-80% उसमें जीत हासिल की है। कर्नाटका में 224 सीटें हैं। आज मॉडिफाइंग कर्नाटका उडुपी में स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। सो कितने जगह पे कर्नाटका में आपका प्रोग्राम मनाने का कुछ आइडिया है? डू यू हैव एनी एजेंडा दैट और एनी प्लान्स दैट हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज यू विल बी विजिटिंग इन कर्नाटका? देखिए, हमारा प्लान है कि इसको हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इस कार्यक्रम को करेंगे, और हर लोकसभा सीट पे कम से कम इस कार्यक्रम को हमारा करने का एक लक्ष्य है। उसके बाद जब लोकसभा में पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फिर विधानसभा में ले जाने का प्रयास करेंगे। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇಜಿಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗರ್ ಅವರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುನ್ನಡೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ VIP ಲಾಂಜ್, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗರ್ ಅವರು. ಇವರು ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಯುವ ನೇತಾರರು. बग्गा जी, पार्लियामेंट में बीजेपी मेजॉरिटी में है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी अभी तक माइनॉरिटी में है. बहुत से मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है, बहुत से संविधान का जो थोड़ा मॉडिफिकेशन मतलब करने का कुछ इरादा है. सो राज्यसभा में अगर बहुमत नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते. सो कब राज्यसभा में भाजपा को और NDA को 2/3 मेजॉरिटी मिलने का अंदाजा है? मुझे लगता है कि इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा है, उनका एक एजेंडा है कि देश के विकास को रोकना. कभी वो पार्लियामेंट को रोकते हैं, और 3 तलाक के मुद्दे पे भी इस समय जो पूरा देश की मुस्लिम महिलाएं जिस तरीके से पिछले 70 सालों से उन्होंने जो शोषण, मतलब चल तो हमेशा से रहा, लेकिन आज़ादी के 70 सालों के बाद कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया कि उन महिलाओं के लिए कुछ कर सके. भारतीय जनता पार्टी उसको बिल लेके आई और जिस तरीके से उसको रोका गया, तो ये भी पता लग गया कि वो महिलाओं की कितनी विरोधी है. मुझे लगता है कि अभी 40-45 जो राज्यसभा सीटें हैं उनका चुनाव अप्रैल के अंदर होने वाला है, और तब तक अगर हम कर्नाटक में, जैसे अप्रैल में कर्नाटक में भी चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत के आती है तो वो भी जो राज्यसभा सीटें हैं उसका भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ेंगी जो कर्नाटक से आएंगी. तो उसके बाद जो बिल आता है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस देश के विकास को रोक रही है वो उनके लिए रोक पाना असंभव हो जाएगा. हालांकि अभी आंकड़ा देखें तो करीब भाजपा और उनके NDA अलायंस को 105 सीट्स है मेजॉरिटी राज्यसभा में, और कांग्रेस के जो अराउंड 138-140 सीटें हैं. राज्यसभा में अगर उनको मेजॉरिटी आना है तो करीब 230 तक के जाने के 130 सीटें चाहिए. तो क्या लगता है कि कर्नाटका के इलेक्शन के बाद जो भी दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन आएंगे, क्या उनके ऊपर मॉडिफाइंग इंडिया का बेनिफिट के रीजन क्या भाजपा दूसरे राज्य में भी जीत सकती है? हालांकि पंजाब का इलेक्शन है और 4 साल के बाद, और अभी कर्नाटका का इलेक्शन है अभी 3-4 महीने के बाद, और ममता बनर्जी जी का वेस्ट बंगाल अभी तक भाजपा के हाथ में नहीं है, तमिलनाडु में भी भाजपा अभी तक नहीं है, केरला में भी भाजपा अभी तक नहीं है. तो अभी 19 राज्य में भाजपा जीत गई है. तो क्या लगता है कि कितने सालों में वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और पंजाब में, दिल्ली में फिर से भाजपा आ सकती है? देखिए, जब हम 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय हम 7 राज्यों में थे, और उसके बाद लोगों ने जब वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देखा, तो उसके बाद आज हम 19 राज्यों में 3 सालों के अंदर है. और इस समय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी एक पार्टी बन के उभरी है, और जो भाजपा के साथ जुड़ने वालों का, लोगों का एक युवाओं का एक हजूम लगा है. आज ये गर्व का विषय है कि 11 करोड़ की सदस्यता के साथ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है. तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और अमित शाह जी की एक जो अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, बंगाल, केरला या कोई भी अन्य राज्य हो, कर्नाटक तो हम जीतेंगे ही, उसके अलावा इसके बाद बंगाल, केरला और अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी. और आप इसका इम्पैक्ट अगर आप देख सकते हैं, जहाँ नॉर्थ ईस्ट में कल तक भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस नहीं थी, आज वह भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा राज्य जीत रही है. उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के अंदर आप देखेंगे अगले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी राज्यों के अंदर होगी. यूथ के लिए स्पेशल आपका क्या मैसेज है? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लोग जो आज विपक्ष के अंदर है, आज वो हमारे से अगर हम उनसे बहस करें, क्या विकास के ऊपर बहस करिए, आप करिए, हमारी सरकार ने क्या किया हम बात करेंगे, और वो उन्होंने क्या किया वो हिसाब दें, तो उनके पास आज कोई जवाब नहीं है. तो मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि ये लोग आज विकास के नाम पे नहीं मांगेंगे आपसे वोट, ये आपसे मांगेंगे कि ये टेररिस्ट है, ये है, ये वो है, ये जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, ये भाषा के नाम पे तोड़ने पे वोट मांगेंगे. लेकिन युवा इन
बातों में ना आए, सिर्फ विकास के नाम पे वोट दे, क्योंकि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर परम वैभव पे लेके जाना है, इस देश को अगर सुपर पावर, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो सपना था कि 2020 में भारत सुपर पावर बने, तो वो सिर्फ विकास के नाम पे हो सकता है, वो जातिवाद के नाम पे नहीं हो सकता है, वो क्षेत्रवाद के नाम पे नहीं हो सकता है, भाषावाद के नाम पे नहीं हो सकता है। तो सिर्फ विकास विकास और विकास के एजेंडे पे साथ चले, और जो लोग इस तरह की भाषा बोले उन लोगों को चुनाव के अंदर करारा जवाब दे। ओके बग्गा जी, हमने दिल्ली और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और बहुत से स्टेट्स के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ले लिया। हमने ये भी सुना है कि आप फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट में भी बहुत से आपने सपोर्ट कर दिया। सो ये फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट का मुद्दा हमारे इंडिया को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक पिछले 65 साल 70 साल के अंदर एक नीति अपनाई है आतंकवाद की, आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। और पाकिस्तान ने सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, अपने जो राज्य है उनके, जिस तरीके से बलूचिस्तान, सिंध और भी अन्य राज्यों में इस तरीके का एक जो लोगों के साथ उनका व्यवहार रहा है, औरतों के साथ बलात्कार होता है, और यही आज से 40 साल पहले बांग्लादेश के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था, उससे इम्पैक्ट हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। महिलाओं के साथ वहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना शोषण करती थी, तो आज वही हालात बलूचिस्तान के अंदर है। और मुझे लगता है कि अगर दुनिया में कहीं भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो एक मानवता के नाते हमें उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, और पूरी दुनिया में कोई भी हो उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो बलूचिस्तान में आज इस तरीके के हालात हैं, महिलाओं के साथ वहाँ की सेना शोषण करती है, और अपने ही देश में वो उन लोगों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। तो इसलिए उन लोगों का सपोर्ट किया जाना आज बहुत जरूरी है। ये कोई राजनीतिक नहीं, मुझे लगता है मानवता का विषय है, और उसमें सभी को एकजुट होना चाहिए। ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ವಹಿಸದೆ ನೆರೆಯ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗರ್ ಅವರು ಅವರ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು 3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಯುವ ನಾಯಕರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ 155ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ನೇತಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದರೇನು, ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದರೇನು, ಇದರ ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಮೊದಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 2018ನೇ ಇಸವಿಯ ತನಕ, ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಬರುವ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರುವ 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೆನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೇಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ that the entire Karnataka, the youth of Karnataka will be with you, and your beautiful concept, the modifying Karnataka, will be a grand success, and I'm sure that this will also help in the coming Lok Sabha election in 2019, and hope to see you at more higher levels in the national politics. Wish you all the very best. Thank you once again. Thank you. Namaste.